Hello student, today in chemistry of class 9, chapter 2, matter in our surrounding, we will continue our further lecture, that is how we can change the state of matter. So now we will see how the effect of change of pressure causes change in the state of matter. In the figure you can see there is a cylinder in which there is a movable piston. This piston can be moved up and down, and the cylinder is filled with gaseous atoms. You can see the gaseous atoms present. Now if this piston is moved down, you can see the gaseous atom will come closer to each other, and the state will change into liquid state. The gaseous state is changed into liquid state. Further, when this piston is moved, it change into solid state. The molecules or atoms come more closer to each other, and this gaseous state has changed into solid state, right? A gas becomes solid under high pressure. When a high pressure is applied on the gas, it changes into solid, right? And the pressure at which the gas changes into solid or changes into liquid is known as critical pressure. The pressure at which a gas changes its state is known as critical प्रेशर. आपने अपने घर में एलपीजी सिलेंडर में देखा होगा, जो आपके घर पे सिलेंडर आता है उसको हम एलपीजी सिलेंडर बोलते हैं. क्यों? बिकॉज द फुल फॉर्म इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. मीन्स इट इज अ पेट्रोलियम गैस विच इज अंडर हाई प्रेशर एंड इज लिक्विफाइड. क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम सिलेंडर लें तो घर से बड़ा तो सिलेंडर हो जाएगा. तो ऐसे केस में हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं और उसे लिक्विफाई कर देते हैं ताकि वो छोटे से सिलेंडर में आ जाए. इसीलिए इसका नाम दिया गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और ये गैस बहुत ही हाई प्रेशर पे होती है, तभी वो लिक्विड फॉर्म में है. इसीलिए जब गैस का सिलेंडर का कहीं ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि गैस जो उसमें होती है वो बहुत ही हाई प्रेशर में होती है और लिक्विड स्टेट में वो बहुत ही छोटे से सिलेंडर में आ जाती है. जब हम प्रेशर रेगुलेटर से खोलते हैं, प्रेशर रेगुलेटर को जब ओपन करते हैं, जो रेगुलेटर लगा होता है उसे प्रेशर रेगुलेटर बोलते हैं, उसके जब हम खोलते हैं तो गैस वहां से लिक्विफाइड फॉर्म में जब प्रेशर रिलीज होता है निकलती है और वो वापस गैस में कन्वर्ट हो जाती है और बर्नर में जाके बर्न होती है. यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे हम प्रेशर को चेंज करके गैस को चेंज कर सकते हैं लिक्विड और लिक्विड से फर्दर सॉलिड में, राइट. नाउ वी विल सी how we can change the state of matter by lowering the temperature. This is a closed system. मतलब ये एक सिस्टम है जो चारों तरफ से बंद है. You can see there is a gaseous molecules which are moving randomly. There is no intermolecular force of attraction, so they are moving randomly in other direction. This is at normal temperature. These molecules have high kinetic energy, means they are moving very fast, so they have high kinetic energy. These molecules have high kinetic, they are moving very fast. But as we lower the temperature, the kinetic energy of the molecule will get lowered, and these molecules will come closer to each other and will form solid particle, right? So on lowering the temperature, the kinetic energy of the molecule get lowers and they come closer to each other and they change into solid particle. This is the concept of dry ice. Dry ice क्या होता है? Dry ice is solid कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. जो आप बर्फ देखते हो जो पहाड़ों पे गिरी होती है, जिसमें लोग जाते हैं बॉल्स बना करके मारते हैं, वो बर्फ गीली बर्फ नहीं होती, उससे कपड़े गीले नहीं होते हैं. दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. हायर एल्टीट्यूड्स पे जहां पे टेम्परेचर कम होता है, सॉलिड के जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं, और जब वो टेम्परेचर काफी कम होता है, जब वो पास आ जाते हैं, ठंडियों में बर्फ गिरती है, हमेशा याद रखिए. तो जब वो काफी पास में आता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो भारी हो जाएगा और हवा में फिर वो नहीं रुकेगा और वो नीचे बर्फ के फॉर्म में गिर जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सो state of matter can be changed by changing the pressure and by lowering the temperature, right. Now the next topic is evaporation. Evaporation क्या होता है? The phenomena of change of a liquid into vapors. लिक्विड जब अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाए, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जैसे अभी अगर आप एक कटोरी में पानी लेकर के धूप में रख दें तो वो थोड़े समय में गायब हो जाएगा, क्योंकि सारा पानी इवेपोरेट कर जाएगा. और इफ यू कीप सम वाटर in your room also, not in direct sunlight, then also it will get disappeared after some time.
और अगर आप उस पर पंखा चला देंगे तो और जल्दी गायब हो जाता है, पोछा लगाने के बाद अगर आप पंखा चला दें तो और जल्दी सूख जाता है। ऐसा कैसे होता है, देखिए इसको हम इसमें समझेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सो द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब जैसे ये सरफेस एरिया कम है, ये सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना तेजी से इवेपोरेशन होगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखिए, हाई ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर विल बी द इवेपोरेशन। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, कपड़ा धुलने के बाद अगर वो मुड़ा हुआ हो तो जल्दी नहीं सूखे, जबकि अगर उसे आप खोल के फैला के डाल दो तो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि कपड़े को जब आप ओपन करके फैलाते हो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो फिर इवेपोरेशन उसमें फास्ट होगा, उसमें का पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, राइट। सो दिस इज। और दूसरा, जब आप कप में चाय लेकर के पीते हो तो चाय गर्म होती है, जब आप उसे प्लेट में डालते हो तो चाय जल्दी ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि प्लेट का, जैसे एक कप का मुंह है, ये प्लेट का मुंह है, तो कप में सरफेस एरिया कम है और प्लेट में सरफेस एरिया ज्यादा है। ज्यादा मतलब ज्यादा इवेपोरेशन और सारा चाय आपकी हीट सारी बाहर निकल गई और चाय आपकी ठंडी हो जाएगी। दूसरा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों के दिनों में कपड़े देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। सो ग्रेटर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नाउ थर्ड इज द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द विंड। तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं, दैट मीन्स हायर विल बी द स्पीड, हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। हायर विल बी द स्पीड, हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। आपको कोई चीज ठंडा करना होता है, आप पंखे से उसे ठंडा करते हो, क्योंकि आप विंड स्पीड बढ़ जाएगी तो वो चीज जल्दी ठंडी हो जाएगी। देन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? सबसे पहले ह्यूमिडिटी समझते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। मतलब हवा में जो वाटर वेपर होता है, जो नमी होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, राइट। सो आपने ध्यान दिया होगा, बरसात के दिनों में आपके कपड़े देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात में हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है। बिस्किट उस्किट अगर आप रखते हो तो उसमें भी नमी आ जाती है। तो बरसात के दिनों में कपड़े इसीलिए देर में सूखते हैं क्योंकि बाहर नमी ज्यादा होती है। तो जितनी कम हवा में नमी होगी कपड़े उतना जल्दी सूखेंगे। मीन्स लो ह्यूमिडिटी, हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। द नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, इसको पहले भी आपको पढ़ाया था वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल वाले कॉन्सेप्ट में। मीन्स लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट जितनी कम होगी इवेपोरेशन उसका उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज लेसर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सो द मॉलिक्यूल्स कैन इजिली इवेपोरेट। The molecules can easily evaporate, so higher will be the evaporation. Means higher volatile is the liquid, higher will be the rate of evaporation. Okay, then we will learn a basic difference between boiling and evaporation. Boiling and evaporation. This topic is quite confusing, that what is the difference between boiling and evaporation. So remember, boiling occurs at a particular temperature. Boiling occurs at a particular, water boil करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, while evaporation occurs at all temperature. सर्दी के दिनों में भी इवेपोरेशन होता रहता है, स्लो होगा लेकिन इवेपोरेशन होता रहता है, और गर्मी के दिनों में इवेपोरेशन होता है, क्वाइट फास्ट होता है. सो evaporation occurs at all temperature while boiling occurs at a particular temperature. It is a bulk phenomena. अगर आप किसी कंटेनर में लिक्विड को बॉईल करते हो तो लिक्विड के सारे पार्टिकल इवेपोरेट होते रहते हैं इस तरीके से. while it is a surface phenomena. इवेपोरेशन अगर होगा तो लिक्विड के केवल इसी सरफेस के मॉलिक्यूल्स को कैरी करके लेके जाएगा, नीचे के मॉलिक्यूल्स को नहीं. सो इट इज अ सरफेस फिनोमेना, इट इज अ बल्क फिनोमेना. एंड इन बॉइलिंग नो कूलिंग इज ऑब्जर्व्ड. बॉइलिंग में कूलिंग ऑब्जर्व नहीं होती है. व्हाइल इन इवेपोरेशन ऑलवेज ऑलवेज कॉजेस कूलिंग. इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग. एग्जाम्पल देखते हैं. गर्मी के दिनों में हम छत पे पानी डालते हैं, जब छत गर्म होती है इसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये इस छत पे की जो हीट होगी उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके ये इवेपोरेट हो जाएगा. और चूंकि इसने छत की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है तो छत आपकी ठंडी हो जाएगी. सो रिमेंबर दिस, बॉइलिंग occurs at a particular temperature, evaporation occurs at all temperature. It is a bulk phenomena. Evaporation is a surface phenomena. Boiling causes no cooling while evaporation always causes cooling. So this is all in chapter 2, matter in our surrounding. And one thing more, there are some examples of evaporation in our daily life. That why we sprinkle water on the rooftop during summer, तो वो मैंने आपको बताया, because it causes cooling.
पोरिंग ऑफ एसीटोन, एसीटोन एक केमिकल होता है, इसको अगर हम अपने हाथ पे डालेंगे तो एसीटोन तो उड़ जाएगा और वो हमारे यहाँ के हीट को कैरी करके उड़ जाएगा और हमारे हाथ में यहाँ पे ठंडा फील होगा, राइट। व्हाई डू यू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में? बिकॉज इवेपोरेशन होने पे कॉटन क्लोथ्स से जो पसीना होता है वो उड़ जाएगा और हमें कूलिंग फील होगी। देन why ice is rubbed down a burnt part of the skin? because when जब कहीं पर कुछ बर्निंग हो जाती है तो वहां पे हीट आ जाती है, तो आइस बर्न करने से वो हीट को वहां से करके निकाल देता है, जिससे कि हमें ठंडा फील होता है और वी फील लेस पेन। सो दिस इज ऑल इन चैप्टर 2। इसके क्वेश्चन आंसर्स इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम फर्दर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ओके, थैंक यू।